اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مشکات شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رات کو جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہے جیسے شب قدر کی رات میں عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اس میں آپ لوگوں کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی ہے، اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ذہن میں ہمیشہ یہ بات رکھنی ہے کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، کیونکہ شب قدر کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورہ قدر، اور احادیث بے شمار ہے۔ لیکن یہ جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں اور یہ دن ہے، یہ بھی اہمیت و فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ذی الحجہ میں عبادت کرتا ہے تو اور دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 10 دنوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں اور دنوں کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ میں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچے اور کیا کرے، ذکر و اذکار میں زیادہ لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابی وہ یہ کیا کرتے تھے، اور بھی صحابہ کرام، کہ جب بھی ذی الحجہ میں یہ ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بازاروں میں بھی جاتے تھے تو اس تکبیر کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو گئی تو یہ تکبیر کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ایمان پر مضبوط ہوگا، ثواب الگ ملے گا۔ تو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ جو ہے 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک جو تکبیرات پڑھتے ہیں وہ ضروری ہے، اور یہ جو تکبیرات ہم پڑھیں گے یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن 5 دن جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، 9 ذی الحجہ سے فجر سے جو اسٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم، تو وہ 5 دن جو ہے وہ ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بلند آواز سے مرد حضرات نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیرات پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ اگلا آدمی تکبیرات پڑھے گا تب میں پڑھوں گا۔ نہیں، اگر آپ کو یاد ہے اور یاد کرنا بھی ہے، یاد ہونا نہیں، یاد کرنا ہے، کیا ہے تکبیرات؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بلند آواز سے سلام پھیرنے کے بعد چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، تمام لوگوں کو پڑھنا ہے، یا اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو ان کو بھی سلام پھیر کر پڑھنا ہے۔ عورتیں بھی یہ تکبیرات پڑھیں گی، بس فرق یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی، کیونکہ عورتوں کی آواز میں بھی پردہ ہے، تو بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ ذی الحجہ میں جب کوئی حج کے لیے نکلا ہوا ہے تو احرام پڑھتا ہے، احرام جب باندھتا ہے تو اس کو بھی ایک تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ جیسے احرام باندھے، نیت کیے، تلبیہ شروع،
جب تک جبر عقبہ کی رمی نہیں کریں گے بڑے شیطان کی، تب تک ان کے لیے یہ کہا گیا کہ حج کے دنوں میں یا عمرہ کا احرام باندھے ہو، جب تک عمرہ کی جو ہے آپ حلق نہیں کرا رہے ہو تب تک آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ پڑھنا چاہیے، آپ حضرات بھی پڑھیں اس کو، کیونکہ جتنا آپ پڑھیے گا محبت کیجئے گا، اگر آپ لوگ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو اس کو جب اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت سے جب تلبیہ بھی پڑھیے گا، اس نیت سے کہ اللہ ہمیں بھی قبول کرے، حالانکہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ حاجیوں کے لیے جو حج کا احرام باندھے یا عمرہ کا احرام باندھے ان کے لیے یہ تلبیہ پڑھنے کی تاکید ہے کہ تم تلبیہ کا ورد کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ تو ہم لوگوں کو کہا گیا کہ تم تکبیرات پڑھو۔ کیا پڑھو؟ تکبیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ ذی الحجہ میں اور کیا کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ میں چلیے، اگر عام دنوں میں ویسے تو نماز پورے سال فرض ہے، یاد رکھیے نماز پورے سال فرض ہے، جس طریقے سے کھانا کھانا کیا ہے؟ ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کی بڑائی بھی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ اگر پسند ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو سجدہ کرتا ہے اور روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندہ کو دیکھتا ہے روتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہا نہیں جاتا ہے، اور جب کوئی معافی مانگتا ہے، انسان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ معافی مانگنے کے لیے جائے کچھ ایسی باتوں کو وہ دماغ میں لیے ہوئے ہے اور ہو سکتا ہے وہ معاف نہ کرے، حالانکہ انسانوں کو بھی کہا گیا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں انسان میں، ان کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے کبھی ایسی بات ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ انسان سے آپ معافی مانگے تو وہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سب دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے کوئی جھکتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ بس اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ سے قرب کا ذریعہ تو بنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح، جب تم میری بڑائی بیان کرو گے، میری تعریف کرو گے، جب تم میری عبادت کرو گے، میرا ذکر کرو گے، ہم تمہارے سے اچھے لوگوں کے سامنے تمہارا ذکر کریں گے، یعنی فرشتوں کے سامنے۔ وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہے، جو صرف اللہ کے حکم کی جو ہے آرڈر، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو آرڈر ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، اس میں چو چرا نہیں کرتے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے بندوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ذی الحجہ میں ایک تو کیا ہے؟ عبادت کثرت کے ساتھ کرے۔ دوسری بات ہے کہ نفلی روزہ رکھے۔ نفلی روزہ اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے، کوئی فرض اور واجب ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھے گا، مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ اس کا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ٹھیک ہے جو ہے 10 دن روزہ نہیں رکھے، 9 دن نہیں رکھے اور 8 دن نہیں رکھے، تو کم سے کم 2-4 روزہ تو رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اگر آپ نہیں رکھے تو کم سے کم عرفہ کا دن، جس کو 90 ذی الحجہ کہتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 90 ذی الحجہ یعنی ہمارے بھارت کے کیلنڈر کے اعتبار سے بقرعید سے 1 روز پہلے جو روزہ رکھے گا، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں۔
अगले साल के भी गुनाह माफ हो जाएंगे और पिछले साल के भी गुनाह माफ हो जाएंगे। तो चाहे मर्द हो या औरतें हो, कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम पूरा 10 दिन रोज़ा ना रखें तो कम से कम 90 जिलहिज्जा अरफा का रोज़ा रखें, 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 90 जिलहिज्जा कोई आम दिन नहीं है। अब वहाँ पे तो खैर 8वीं जिलहिज्जा पड़ जाता है, हम लोग के भारत के हिसाब से 9वीं, वहाँ 8 सऊदी अरब में, तो यहाँ 9, तो वहाँ 8 जिलहिज्जा को उनके लिए समझिए 9 है। अब यहाँ पर मेरी राय ये है कि आप भारत के हिसाब से 8 जिलहिज्जा का भी रोज़ा रख लीजिए, 9 का भी रख लीजिए, ताकि एक सऊदी से मुशाबिहत हो जाए, क्योंकि वहाँ एक रोज़ पहले 9 हो जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ होगा। तो अगर 2 रोज़ रोज़ा रख ले ताकि वहाँ से मुशाबिहत हो जाए तो ज़्यादा फजीलत है। 90 जिलहिज्जा के दिन कहा गया कि जितने हाजी अराफात के मैदान में ठहरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। शैतान सबसे ज़्यादा जलील और रुस्वा अगर होता है तो अराफात के मैदान में होता है, और वो जो है इधर उधर परेशान हाल शैतान फिरता रहता है कि आज हमने इतनी मेहनत की, बंदे को बहकाया और उसको ना जाने कितने कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस किया, लेकिन आज अराफात के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला तमाम हाजियों की मग़फ़िरत कर देते हैं, तमाम हाजियों के गुनाह को माफ़ कर देते हैं। तो ये अराफा का दिन बहुत फजीलत वाले दिन है। इसी तरीके से कहा गया कि जो है कुर्बानी, ये जो है 10 जिलहिज्जा से लेके 12 जिलहिज्जा तक ये जो 3 दिन का वक्त है, इन 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद अगर है तो वो कुर्बानी करना है, वो कुर्बानी करना है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो 3 दिन है जिलहिज्जा के, यानी 10, 11, 12, ये 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा अगर पसंद है तो वो कुर्बानी है। यहाँ तक के हदीस के अंदर कहा गया कि कोई इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है तो वो कुर्बानी का जानवर के खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। लेकिन मुसलमान ये जो कुर्बानी करते हैं, ये क्यों करते हैं? अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। हमारी नियत नऊज़ बिल्लाह गोश्त खाने की नहीं, किसी की भी नियत नहीं होनी चाहिए। हमारी नियत ये होनी चाहिए कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारी नियत होनी चाहिए। इसी वजह से कहा गया कि अगर कुर्बानी कर रहे हैं और कुर्बानी में अगर बड़े जानवर में 7 हिस्सा लिए हैं, उनमें से किसी एक की भी नियत अगर ये है कि हम ये गोश्त खाएंगे या गोश्त को बेचेंगे, तो याद रखिएगा किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, किसी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए अगर आप शरीकदार को शरीक कर रहे हैं, पहले ही उनको ये ताकीद करें, हमारी नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं। इसी तरीके से हदीस के अंदर है, कल क़यामत के मैदान में, ये भी मिशकात शरीफ की हदीस में है, कल क़यामत के मैदान में जो जानवर की कुर्बानी आप देंगे वो अपने बाल, अपने सींग और खुरों के साथ आएगा, खुरों के साथ आएगा। और फिर इसके बाद ये भी एक हदीस में है कि जिस जानवर को अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप कुर्बानी करेंगे तो वो पुलसरात में आपके लिए सवारी बनेगा। इसलिए जब भी जानवर को खरीदे तो ये देखें कि अच्छा जानवर होना चाहिए, अच्छा जानवर होना चाहिए। और इसी तरीके से जिस जानवर की अगर जहाँ पे मना है उस जानवर की कुर्बानी नहीं देना है, लेकिन जो जानवर जो है इजाज़त है उसकी करनी है।
दूसरी बात, अभी अफवाह भी बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है कि नहीं हुकूमत के तरफ से कुर्बानी बिल्कुल मना है। हालांकि उर्दू के अखबार में ये बात आई हुई है, अब्बास नकवी ने खुद कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, अभी तक ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि कुर्बानी बिल्कुल नहीं करना है। बाद जगहों में, बाद स्टेट में जो है वो कुछ जानवर की कुर्बानी मना, तो उनको हमें फॉलो करना है, लेकिन तमाम जानवरों की कुर्बानी मना नहीं है। और आजकल तो अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, और हम लोग क्या है कि मुसलमान उसको तहकीक भी नहीं करते हैं। तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है डायरेक्ट कुर्बानी से मना नहीं किया गया है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि हम लोग भारत में रहते हैं और हर मज़ाहिब का ख्याल करना ज़रूरी है। तो कुर्बानी अगर हम करेंगे तो पर्दे का एहतमाम के साथ करेंगे, कहीं पे कूड़ा कचरा रास्ते में नहीं फेंकेंगे, ख़ास सफाई का ख्याल रखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बड़े जानवर की कुर्बानी कर रहा है, मसाइल भी तो सीखना बहुत ज़रूरी है या नहीं? वरना पता चला जानवर लिए अब कुर्बानी हमारी सही नहीं, अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं हुआ तो फिर अफसोस। तो याद रखिए, बड़ा जानवर अगर ले रहे हैं, भैंस वगैरह है, बैल वगैरह, तो ये मुकम्मल 2 साल होना चाहिए। 2 साल से अगर एक दिन भी कम रहेगा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बाद लोग कहते हैं कि नहीं दांत देखना ये जो है उसको एतबार किया जाएगा, दांत देखना ये एक निशानी अलामत है, उसका एतबार नहीं किया जाएगा, उम्र का एतबार किया जाएगा। तो बड़ा जानवर मुकम्मल 2 साल, छोटा जानवर अगर खस्सी वगैरह आप ले रहे हैं तो मुकम्मल 1 साल होना चाहिए। ये 2 दांत नहीं चलेगा, बल्कि उम्र का एतबार किया जाएगा। मुकम्मल 1 साल उम्र होनी चाहिए, उससे एक दिन भी अगर कम होगा तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। फिर आप बाद लोग गलत क्या करते हैं कि कुर्बानी के दिनों में ये ख्याल करते हैं कि नहीं हम कुर्बानी नहीं करेंगे, वो पैसा हम क्यों ना सदका कर दें। याद रखिएगा, वो 3 दिन जो है वो कुर्बानी करने का हुक्म है, सदका करने का नहीं। सदका और दिन कीजिए, उस दिन सदका कीजिएगा तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि उस दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद कुर्बानी है। अब अगर हम अपने से सोचेंगे कि नहीं कोई सदका कर दे, गरीबों का भला होगा, और भी है, पूरे साल सदका करते रहिए, कौन मना कर रहा है? उस दिन कुर्बानी कीजिए। अगर आप अपनी जगह में नहीं कर सकते हैं, खुदा न खास्ता किसी उज्र की वजह से आप गांव मोहल्ला में दीजिए। आपके यहाँ और भी गांव होंगे, बाप दादा का घर होगा, वहाँ भी दे सकते हैं। जहाँ सहूलियत हो जाए, कुर्बानी होनी चाहिए। कुर्बानी असल मकसद है। इसी तरीके से कुर्बानी के बारे में ज़रूरी और अहम बातें मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत से हज़रात इसमें गलती करते हैं, कुर्बानी का जानवर खरीदे तो जो ये देख कर खरीदेंगे कि वो बिल्कुल हड्डी नहीं होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि गोश्त सही सालिम। अगर वो जानवर बिल्कुल हड्डी दिखाई दे रहा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। या जिस जानवर का कान कटा हुआ हो, अगर थोड़ा बहुत कान कटा हुआ है तो कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर उस जानवर का जो कान है वो 1/3 हिस्सा कट गया है, यानी आप कान को नापिए 1, 2, 3, तो 1/3 हिस्सा अगर कट गया है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। या 1/3 से ज़्यादा कट गया हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उससे कम कटा हुआ हो तो कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से अगर दुम भी 1/3 हिस्सा से ज़्यादा कट गया हो या 1/3 हिस्सा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरीके से अगर किसी गाय, किसी भैंस हो या गाय हो या जो भी चीज़ें हो, अगर उसका दांत बिल्कुल गायब है कि उससे चरने की कादिर नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी
दुरुस्त नहीं है, या फिर ऐसा लंगड़ा हो कि वो चार पैर ज़मीन पर नहीं रखता हो बिल्कुल भी, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर चौथा पैर ज़मीन पर रख कर चल सकता है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। फिर इसी तरीके से अगर किसी जानवर की बीनाई बिल्कुल कमज़ोर है, वो जो है देख नहीं सकता है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। या फिर किसी जानवर का सींग ऐसा टूट गया कि उसके अंदर का खाल नजर आ रहा हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। या फिर बाज़ लोग अभी मसला मुझसे पूछ रहे थे कि अगर किसी का कान के साथ एक कान और निकल जाए, मिसाल के तौर पर 2 कान जानवर का रहता है, अब अगर 3 या 4 कान किसी का हो, एक्स्ट्रा कान, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है? तो दुरुस्त नहीं। किसी जानवर के अंदर ऐब ज़्यादा पैदा हो गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रख कर कुर्बानी करने का। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपको बात समझ में ना आए तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, अपने बड़े उलमा से भी राब्ता कर सकते हैं, जिनसे आपको तशफ़ी बख्श जवाब मिल जाए, आप उनसे कॉल करके उलमा से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से कहा गया कि कुर्बानी के दिन ये कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत को नहीं है फजीलत, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी कुर्बानी था। अगर आप तारीख और सीरत की किताबों का मुताला करेंगे तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में ये दोनों आए तो उस वक्त उनके ज़रिए से ख़ानदानी सिलसिला यानी पैदाइश शुरू हुई और तवालुद का सिलसिला शुरू हुआ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा पैदा हुआ काबिल, और उसके साथ एक लड़की पैदा हुई अकलीमा। फिर कुछ मुद्दत के बाद फिर एक लड़का पैदा हुआ हाबिल, उसके साथ एक लड़की पैदा हुई यहूदा। तो उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कानून शरीयत के मुताबिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो है काबिल की निकाह यहूदा के साथ और अकलीमा का निकाह हाबिल के साथ कर दो, क्योंकि अलग अलग वक्त में पैदा होने वाले अलग अलग ख़ानदान कहलाए। तो इस पर काबिल ने इनकार किया कि नहीं, मैं अपने साथ जो पैदा हुई अकलीमा मेरे साथ में, मैं उनसे निकाह करूँगा, क्योंकि वो खूबसूरत ज़्यादा थी यहूदा के मुकाबले में। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, लेकिन वो जिद करने लगे। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग कुर्बानी दो, और अल्लाह के बारगाह में जिनकी कुर्बानी कबूल हो जावे तो समझो कि उनका निकाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। तो क्या करते हैं कि काबिल जो है अपने खेत से गल्ला लाता है और हाबिल दुम्बा लाता है, और उसके बाद जो है ज़मीन पर रख दिया जाता है। उस दौर की बात है कि आसमान से आग आती थी और जिसको जला देती कि समझो कि अल्लाह के बारगाह में उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। तो जब आसमान से आग आती है और हाबिल जो दुम्बा लाया था तो वो दुम्बा को जला देती है, यानी कि अल्लाह के बारगाह में उनकी कुर्बानी कबूल हो जाती है। तो ये काबिल को बर्दाश्त नहीं हुआ और काबिल ने उसी वक्त कत्ल कर दिया। सबसे पहला कत्ल करने वाला काबिल था, सबसे पहला कत्ल वहीं से ईजाद हुआ। और ये वाक़िया कुरान के तफसीर में भी मौजूद है, चाहे मारिफुल कुरान हो, तफसीर इब्न कसीर हो या तफसीर मजहरी हो, उन सब में ये किस्सा मौजूद है। अब याद रखिएगा कि कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, और हम लोग वाक़ियातन बताते रहते हैं कि कत्ल करना, एक इंसान को अगर किसी बेकसूर को कत्ल किया तो वो है ऐसा कि जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। मुस्लिम को भी कत्ल करना गुनाह है, गैर मुस्लिम को भी बेकसूर को कत्ल करना गुनाह है। सिख ईसाई जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, कत्ल करने का ये तो कानून शरीयत के एतबार से भी जुर्म है और कानून के एतबार से भी जुर्म है। और हम लोग यही हुक्म देते हैं कि कत्ल करना क्या है? गुनाह है, लेकिन हाँ इंसाफ सबके लिए बराबर है।
اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر رہا ہے اس کے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے، دو طرفہ نہیں ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو اس سے امن رہے گا، محبت ہمارے بھارت میں، اور انشاءاللہ دعا یہی کرنی ہے کہ بھارت کے اندر امن و امان، بھائی چارگی برقرار رکھے اور عدل و انصاف کا معاملہ ہمارے یہاں چلتا رہے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں، پھر اگلے جمعہ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔